Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Those who are watching me online, I welcome you all to this online training session. In this tuning session, we are learning easy English conversation, how to understand English language and how to speak English language. So, in this process, we have completed many lessons. Basic lesson of 333, then we learned tenses, then parts of speech. Recently, we completed modal auxiliaries. And as I said yesterday, today we are going to talk about one of the most important chapter of English language, that is called voice. First of all, let me tell you what is voice. There are two meanings of voice. As a noun, voice means the sound, आवाज़. Okay, एक किसी आवाज़ को voice हम कहते हैं. But the voice which I am going to share with you, this is one of the lesson of English language. And what is the use of this chapter, voice, that we are going to discuss today. Because I have observed that many people have difficulties to use voices. They can understand voices, they can make the sentences, they can arrange the structure properly, but again at the time of speaking it is very difficult for them to use voices in their conversation. And believe me, if you are good at voices, you will be able to make sentences in two different ways. So basically, what is voice? Today we are going to learn. So before going ahead, I request you all to share this link with maximum people, those who want to take the advantage of English learning, those who want to clear their concepts about English speaking, English grammar, or understanding English language. Because today's topic is very important, so I hope you all will share this link with maximum people so that they will take the advantage. And after completing this session, you will find this video on our YouTube channel also, Ask Parvez Khan. So go to our YouTube channel, subscribe it and share with maximum people so that many people can take the advantage of English learning online. So let's start our today's topic, that is voice. So voice. Basically, there are two types of voices. We call it active voice and passive voice. Now, many people have understood what we are going to learn. अब बहुत सारे लोगों को पता चला है कि हम सीखने क्या जा रहे हैं, वॉइस का मतलब क्या है. क्योंकि सबको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये नाम सभी के लिए फैमिलियर है. बहुत सारे लोग जानते हैं व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस. ये इतना तो सबको पता है. तो आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक ऐसा चैप्टर है कि मेनी टीचर्स आर ऑल्सो कन्फ्यूज अबाउट यूजिंग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सो आई होप दे विल ऑल्सो क्लियर देयर डाउट्स टुडे. कई टीचर्स भी ऐसे हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन उनके भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं है. और अगर कंसेप्ट क्लियर है भी तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कहाँ होगा, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है. So today we'll clear all the doubts about voices. So basically there are two types of voice, active voice and passive voice. So let me tell you what is active voice and what is passive voice. ये बात करने के दो तरीके हैं. हम किसी भी बात को दो तरह से कर सकते हैं, दो तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि हम अपनी लैंग्वेज में भी करते हैं. देखिए, हर बार मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज से कंपेयर करके बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज कोई बहुत अलग लैंग्वेज नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है. वहाँ पर भी वैसी ही बात होती है जैसे हमारे यहाँ होती है. ठीक है, तो यहाँ बताता हूँ मैं आपको कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है. तो एग्जाम्पल हमारी लैंग्वेज से, जब हम हिंदी में, उर्दू में बात करते हैं तब हम कहते हैं कि मैंने कार खरीदी, ये है एक्टिव. और अगर हम कहते हैं कि कार खरीदी गई मेरे द्वारा, ये है पैसिव. ठीक है, अगर आप कहते हो कि मैंने शेर मारा और शेर मारा गया मेरे द्वारा, तो इसमें से मैंने शेर मारा ये एक्टिव वॉइस है और शेर मारा गया मेरे द्वारा ये पैसिव है. अब मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव. तो ये दो तरीके हैं सेंटेंस बनाने के. दीज आर टू टाइप्स टू मेक द सेंटेंसेस. ओके, एक्टिव एंड पैसिव. ठीक है, वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू दैट पुलिस ने चोर को पकड़ा और चोर पकड़ा गया पुलिस द्वारा. कोई फर्क है इसमें? कोई फर्क नहीं है. दोनों सेंटेंस में कुछ भी फर्क नहीं है.
सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है और काम भी वही हुआ है, ठीक है। सिर्फ फर्क ये हुआ है कि कभी हमने काम करने वाले का नाम पहले ले लिया और यानी अरेस्ट करने वाले का नाम पहले लिया, जो अरेस्ट हुआ उसका नाम बाद में लिया। और पैसिव में क्या किया, जो अरेस्ट हुआ उसका नाम पहले लिया और जिसने अरेस्ट किया उसका नाम बाद में लिया। तो यही है एक्टिव और पैसिव, जिसमें सेंटेंस के मीनिंग बिल्कुल नहीं बदलते, लेकिन बात करने के ये दो तरीके हम इख्तियार करते हैं और इसकी बिना पर हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव ये बात करने के दो तरीके हैं, इन दो तरह से हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों को पैसिव नहीं आता है, आई हैव ऑब्जर्व दैट दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू द कॉन्वर्जेशन वंस दे आर स्टक। एक बार रुक जाने के बाद फिर उन लोगों को आगे कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू करते नहीं आता, जिनके पैसिव जो है वो उनका बहुत वीक है। अक्सर लोग एक्टिव में ही बात करते हैं, पैसिव में बात नहीं करते। सो पैसिव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वेन यू आर स्टक, अगर आप कहीं रुक जाते हो, अटक जाते हो बात करते समय, तो पैसिव वॉइस आपको हेल्प करता है वहां से निकलने में। तो पैसिव वॉइस इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है कि बात करते समय, इंग्लिश में बात करते समय आप रुके ना। आपको एक्टिव नहीं आया तो आप पैसिव में सेंटेंस बनाकर आगे निकल जाओ, ये इसका हमारा मकसद है, ठीक है। अब एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है, तो एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। तो यहाँ इनकी बेसिक आइडेंटिटी इस तरह से है कि जैसे कि हम जानते हैं हमारे सेंटेंस में जो वर्ड सेंटेंस में पहले आता है हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं, जो दूसरी पोजीशन में आता है वो वर्ब, जो तीसरी पोजीशन में आता है वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिव का डेफिनेशन आप लिख रहे हो तो लिख लो, व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस डज द एक्शन, एक्टिव वॉइस डज द एक्शन एंड एक्टिव वॉइस shows the action and the subject does, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ करता है, ठीक है। तो ये होता है एक्टिव, ठीक है। और पैसिव क्या होता है, when something happens to subject that is passive, जब सब्जेक्ट के साथ कुछ हो गया तो वो पैसिव, ठीक है। जैसा फॉर एग्जाम्पल he killed a dog, he killed a dog, तो ही क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, काम किया कि किसने किया, ही ने किया, ही किल्ड किसको, डॉग को। तो यहाँ डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया, ठीक है, यानी सब्जेक्ट ने किल किया ऑब्जेक्ट को। अब पैसिव क्या होगा, तो पैसिव में अब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा जिसको हम अब सब्जेक्ट कहेंगे। तो व्हाट इज पैसिव, पैसिव shows that what happens to the subject, like a dog is killed by him, a dog, अब dog यहाँ सब्जेक्ट है हमारा, तो उसके साथ क्या हुआ, is killed by him, उसके द्वारा, उस लड़के के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एक्टिव शोज व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है, और पैसिव शोज व्हाट हैपेंस टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपके लिए कि एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस समझने के लिए। अब यहां पर एक्टिव और पैसिव कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आमतौर से ज़्यादातर तो एक्टिव वॉइस ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, वो ऐसा करेगा और वो ऐसे करता है, ठीक है। बहुत कम समय हम बात करते हैं पैसिव में कि उसके द्वारा ऐसे हो गया, और मेरा मोबाइल खो गया, और मेरा घर बन रहा है, ये है पैसिव, ठीक है। तो इसमें हम कम बात करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस क्या है, और आप कभी वक्त जानबूझकर पैसिव में ज़्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करें ताकि आपके एक्टिव और पैसिव दोनों परफेक्ट हो जाए। एक्टिव सभी के परफेक्ट है, पीपल हैव प्रॉब्लम इन मेकिंग सेंटेंसेस विथ पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आज हम देखेंगे पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव में यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पर ग्रामेटिकल हम कुछ डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि द सेंटेंस विच हैव ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वॉइसेस, यानी ऐसा वर्ब जो ट्रांजिटिव है उसको हम एक्टिव और पैसिव दोनों में बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा वर्ब
जो इंट्रांजिटिव है, यानी एग्जांपल देता हूं मैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जैसे कि कोई वर्ब किसी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट एक्शन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल किल द डॉग, ठीक है, किल द डॉग, यानी किल एक एक्शन है और किसी पर वो होती है, डॉग पर हो गई, टाइगर पे हो गई, किसी नेबर पे हो गई, ठीक है, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह ईट, ईट मैंगो, ईट बनाना, ईट आइसक्रीम, यानी ईट भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है कि जो किसी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट काम करता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर कुछ ऐसे वर्ब है कि जिनको इमीडिएट कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रन। अब रन एक ऐसा वर्ब है जो सिर्फ होता है, किस पर हम करते हैं ये नहीं होता है। हम आमतौर से क्या कहते हैं, आई रन इन द ग्राउंड, आई रन इन द ग्राउंड, यानी रन करता हूं मैं, लेकिन वो किसी ऑब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा। उसी तरह आई स्लिप, आई स्लिप, उसको कोई ऑब्जेक्ट है आगे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसको। तो ये जो होते हैं, ये इनको हम कहते हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ये ऐसे वर्ब है जो डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट पे अफेक्ट नहीं करते। तो ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब से हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये बेसिक यहाँ पर डिफरेंस हुआ कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो एक्टिव और पैसिव दोनों बनेंगे, इंट्रांजिटिव होगा तो पैसिव नहीं बनेगा, एक्टिव बन सकता है, ठीक है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत कम है, ज्यादातर क्वांटिटी ट्रांजिटिव की है, ठीक है, बहुत सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है ट्रांजिटिव की है, इंट्रांजिटिव वर्ब की क्वांटिटी बहुत कम होती है। चलिए अब इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट व्हाट हुम टू कंप्लीट द सेंटेंस ऑफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि मैंने कहा ना कि ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको वो कुछ अफेक्ट करे, ठीक है। Now we will make two sentences here, like Samir made the house, ये है active, and the house was made by Samir, ये है passive, ठीक है। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है। एक्टिव में सब्जेक्ट क्या करता है हम बताते हैं, और पैसिव में सब्जेक्ट के साथ क्या होता है ये हम बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों के एक्टिव क्लियर है तो हम यहाँ पर एक एक्सरसाइज लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि अगर आपको एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने आ गया तो आप डायरेक्ट पैसिव में भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक्टिव पैसिव सीखने का हमारा मकसद ये नहीं कि हम ग्रामर सीखते बैठे और एक्टिव पैसिव करते बैठे। हमारा यहाँ मकसद ये है कि इफ आई एम एबल टू मेक सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस, आई शुड बी एबल टू मेक सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस ऑल्सो। क्योंकि अक्सर लोग पैसिव में सेंटेंस नहीं बनाते, और पैसिव में सेंटेंस बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। पैसिव में जब भी सेंटेंस बनेगा वो बहुत शॉर्ट मैसेज होगा, क्लियर मैसेज होगा। इसलिए आप देखोगे अक्सर गवर्नमेंट नोटिसेस जो होती है वो पैसिव वॉइस में होती है। स्कूल कॉलेजेस की जो नोटिसेस होती है, नोटिफिकेशंस होते हैं, अनाउंसमेंट्स होते हैं, ये सब पैसिव वॉइस में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है योर एग्जाम्स विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, एग्जाम विल बी हेल्ड, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। आपको कहा जाता है कि यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर रिजल्ट, आप जाकर पूछते हो आपके क्लर्क को कि व्हाट अबाउट माय रिजल्ट, तो आपको सिर्फ इतना आंसर देगा कि यू विल बी इन्फॉर्म्ड, तुम्हें खबर मिल जाएगी। कौन देगा ये नहीं बोलता है वो, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस है। उसी तरह पुलिस स्टेशन में लिखा होता है किसी के नाम के आगे ही इज वांटेड, ही इज वांटेड, तो ही इज वांटेड क्या है, ये पैसिव वॉइस है, यानी इसकी जरूरत है, किसको जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ही इज वांटेड ये भी पैसिव वॉइस है, ठीक है। उसी तरह जब आप किसी को मैसेज भेजते हो तो आपको एक मैसेज आता है, आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज अपीयर होता है, और वो मैसेज ये होता है योर मैसेज हैज बीन सेंट। जब मेल करते हो, मैसेज सेंड करते हो, तो आपके स्क्रीन पे एक मेल आता है, वो मेल क्या होता है, योर मैसेज हैज बीन सेंट, यानी आपका मैसेज चला गया। वो क्या खुद से गया, नहीं, आपने भेजा। लेकिन यहां पर सिस्टम को पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आपने मैसेज भेज दिया, सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट वहां पर पैसिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया, और वो पैसिव सेंटेंस क्या है, आपका मैसेज चला गया। उसी तरह और एक एग्जांपल, जब आप एटीएम मशीन में से पैसे विड्रॉ कर रहे होते हो, ठीक है, आपने अमाउंट डाल दी, आपने पासवर्ड डाल दिया, और जब मशीन जो है प्रोसेस करती रहती है तब एक मैसेज आपकी स्क्रीन पर आता है एटीएम मशीन की, और वो मैसेज ये होता है योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड। क्या मतलब है उसका, आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस में है। कौन प्रोसेस कर रहा है वहां पर वो नहीं कह रहा है, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग
प्रोसेस्ड। तो ये सारे सेंटेंसेस पैसिव में है। तो इससे पता ये चलता है कि पैसिव सेंटेंस ये एक शॉर्ट और ब्यूटीफुल मैसेज होता है, इसलिए अक्सर नोटिसेस, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस जो होती है वो पैसिव वॉइस में ही होती है, इसलिए हमको पैसिव वॉइस सीखना यहाँ जरूरी है। ठीक है, एक्टिव में किसी का प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप पूछो सर एक्टिव वॉइस क्या है, तो मैं कहूँगा अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस बनाए, हमने जब टेंसेस पढ़ा, हमने जब 3-3 फॉर्मूला पढ़ा, तब भी हमने एक्टिव में ही बनाया। टेंसेस भी हमने एक्टिव में बनाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने एक्टिव में बनाया, फिर मॉडल ऑक्सिलरीज हमने एक्टिव में बनाए। अभी तक जितनी प्रैक्टिस हुई सारे सेंटेंसेस एक्टिव में बने। अब हम पैसिव में सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, या इन शॉर्ट कह सकते हैं कि उन सारे सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए, तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा? जैसे मैंने कहा कि समीर मेड द हाउस, तो यहां पर समीर क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, मेड क्या है? वर्ब, एंड द हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसको हमको पैसिव करना है, तो इन शॉर्ट कैसे बन जाएगा वो? समीर मेड हाउस, यह है एक्टिव। पैसिव कैसे हो जाएगा इसका? द हाउस वॉज मेड बाय समीर। ठीक है, आई गिव यू वन मेथड, दैट मेथड इज कॉल्ड द 3 फिंगर मेथड। आई ईट मैंगो, द मैंगो इज ईटन बाय मी। आई हेल्प्ड द पीपल, the people were helped by me. She will prepare food. Food will be prepared by her. He cleans the house. The house is cleaned by him. ठीक है, तो ये एक सिंपल मेथड है एक्टिव से पैसिव करने का। ठीक है, यानी इतना सिंपल है एक एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, जितना मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ जो है उसके लिए हमको सारे रूल्स पढ़ने होंगे, और वो ये है कि जब जब सेंटेंस चेंज होगा तब तब हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, और ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा कब आएगा ये समझने के लिए अब हम यहाँ पर कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया, लेकिन अब हम जाते हैं डिटेल में कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। ठीक है, चलिए, अब यहां पर हमारा वही सेंटेंस समीर मेड द हाउस। ठीक है, अब इसको पैसिव करने के कुछ रूल्स है, वो रूल्स क्या है तो लिख लीजिए। अगर आप लिख रहे हो सो यू शुड राइट डाउन द रूल्स ऑफ मेकिंग पैसिव फ्रॉम एक्टिव। ओके, सो द रूल नंबर वन, आइडेंटिफाई द टेंस। ठीक है, जो भी टेंस में आप सेंटेंस बना रहे हो, पहले आपको उस टेंस की जानकारी होनी चाहिए। ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, फ्यूचर है, कंटिन्यूअस है, या टेंस ही नहीं है? हो सकता है सेंटेंस मॉडल में भी हो, तो मॉडल में भी अगर सेंटेंस है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये सेंटेंस जो है एक्टिव वाला, तो ये किस में है, कौन से टेंस में है या कौन से मॉडल में है। ठीक है, रूल नंबर 1। दूसरा, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। यह है रूल नंबर 2। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखिए, मैंने जैसे पहले कहा था आपको कि जब आपका वर्ब ट्रांजिटिव होगा तभी ही पैसिव होगा, अगर इंट्रांजिटिव होगा तो उसका पैसिव नहीं होगा। तो इंट्रांजिटिव वर्ड क्या है? जैसे आई रन, ठीक है, तो आई रन का ऑब्जेक्ट ही नहीं है उसमें, तो ये क्या हो गया? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, उसी तरह आई लाफ, मैं हंसता हूं, कोई ऑब्जेक्ट है उसके आगे? नहीं है। अगर उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, आई स्लिप एट नाइट, अब इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आई स्लिप, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, एट नाइट जो है वो एक टाइमिंग है। ठीक है, तो ये जो ऐसे अगर सेंटेंस है जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो उनका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 2, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था? समीर मेड द हाउस। ठीक है, समीर सब्जेक्ट था और हाउस ऑब्जेक्ट था। अब रूल नंबर 3 में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ला लिया हमने यहाँ पर इसको। अब समीर सब्जेक्ट नहीं रहा, अब द हाउस सब्जेक्ट है। ठीक है, सो हमारा रूल नंबर 3 है
द हाउस। अब हमने द हाउस को सबसे पहले लेकर आया, ठीक है। यहां से अब सेंटेंस बनना शुरू हुआ। पहले दो रूल हमको सिर्फ समझने के लिए, रूल नंबर 3 से सेंटेंस बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। सो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, द हाउस हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब रूल नंबर 4, नाउ रूल नंबर 4, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 4। वो ये बताता है कि अब हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, क्योंकि देखिए पैसिव वॉइस में सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर सेम है। आप किसी भी टेंस का पैसिव बना लो, स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ एक ही चीज बदलेगी और वो है हेल्पिंग वर्ब। पैसिव में, एक्टिव में तो बहुत सब कुछ चेंज होगा ना। सिंपल प्रेजेंट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, सिंपल पास्ट है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आ जाएगा, परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ये एक्टिव में होगा। लेकिन पैसिव में आप देखिए स्ट्रक्चर कितना सिंपल है। पैसिव में आप किसी भी टेंस में सेंटेंस बनाइए, आपका स्ट्रक्चर फिक्स है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। तो ये रूल नंबर 4 हमको वही बता रहा है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कब आएगा। इसलिए मैंने कहा रूल नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब रूल नंबर 4 क्या है? जैसा रूल नंबर 3 से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया तो हमारा सब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? द हाउस, ठीक है। अब रूल नंबर 4 अच्छे से समझिए और इसको लिख लीजिए। रूल नंबर 4 इज यूज टू बी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। अब करना क्या है आपको, जैसा आपका टेंस है उसके हिसाब से आपको टू बी हेल्पिंग वर्ब लाना है। टू बी हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब की हमारे पास 3 कैटेगरीज है। जैसे मैंने कहा था आपको, टू बी, टू हैव और टू डू। यहां पर आपको कहा जा रहा है यूज टू बी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू टेंस कौन सा टू बी हेल्पिंग वर्ब कहां आता है, ठीक है। तो अब लिख लीजिए। अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल, आप टेबल बना लीजिए, सिंपल 3 कॉलम बना लीजिए। सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, देन सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आपके टू बी हेल्पिंग वर्ब है एम, इज, आर, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में आपके हेल्पिंग वर्ब क्या है टू बी के? एम, इज, आर, ठीक है। चलिए, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? अब आप कहोगे कि एम, इज, आर तो सर कंटिन्यूअस में आता है, क्योंकि एक्टिव में हमने कंटिन्यूअस में यूज किया था ना। आई एम टीचिंग, ही इज प्लेइंग, करेक्ट, लेकिन वो एक्टिव का था, ठीक है। पैसिव में थोड़े से हेल्पिंग वर्ब शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट का हमारे पास टू बी हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, इज, आर, ठीक है। अब एम किसके साथ? आई, और इज किसके साथ? ही, शी, इट के साथ, और आर किसके साथ? यू, वी, दे के साथ, ठीक है। चलिए, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है फिर? तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपके एम, इज, आर के साथ बीइंग लग जाएगा। बीइंग, एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं कहूं कि शी इज मेकिंग फूड, तो इसका पैसिव होगा फूड इज बीइंग मेड बाय हर, ठीक है। तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, ठीक है। उसी तरह परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टू बी हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो वही है, हैव और हैज वैसा ही है, सिर्फ उसके साथ बीन लग जाएगा, ठीक है। पहले में क्या था? कंटिन्यूअस में बीइंग था, BEING, लेकिन परफेक्ट का क्या होगा? टू बी हेल्पिंग वर्ब बीन, BEEN, ठीक है। तो हैव बीन और हैज बीन ये परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टू बी के हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चलिए पास्ट की तरफ जाते हैं। पास्ट का टू बी का हेल्पिंग वर्ब क्या है? वैसे तो उसके एक्टिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था। जैसे मैंने कहा ना कि ही किल्ड द डॉग, ही किल्ड द डॉग, तो यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आया। सब्जेक्ट आया, मेन वर्ब आया और ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्या आएगा? वॉज एंड वर। अब वॉज कब आएगा? ही, शी, इट और किसी सिंगल के लिए, ठीक है। और वर किसके लिए? यू, वी, दे, और प्लूरल के लिए वर आएगा, ठीक है। अब पास्ट के कंटिन्यूअस में क्या आएगा? तो पास्ट के कंटिन्यूअस में सिर्फ इतना करेंगे हम कि वॉज और वर के आगे बीइंग लगा देंगे, BEING, बीइंग, वॉज बीइंग और वर बीइंग, ठीक है। उसी तरह
अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का टू बी का हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो सिर्फ वहां पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, हैड, उसको लगा दो बीन, हैड बीन, BEEN वाला बीन, ठीक है। ये आपके सारे सब्जेक्ट के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है टू बी में, हैड बीन। चलिए, अब ये हो गया हमारा पास्ट टेंस। फ्यूचर की तरफ चलते हैं। फ्यूचर में जैसा ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है विल, ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर का टू बी हेल्पिंग वर्ब है विल बी, ठीक है, जो कि एक्टिव में अगर इस्तेमाल करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है, लेकिन पैसिव में ये सिंपल फ्यूचर में आएगा, ठीक है। विल बी, जैसे फॉर एग्जांपल शी विल प्रिपेयर फूड, तो इसका पैसिव हो जाएगा फूड विल बी प्रिपेयर्ड बाय हर, ठीक है। चलिए, अब इसके फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, ठीक है। देखिए, ये नोट कर लीजिए आप, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। अब डायरेक्ट आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब था, वो था विल हैव, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है, विल हैव को बीन लगा देना है, सिर्फ विल हैव बीन, BEEN वाला, विल हैव बीन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव पास द एग्जाम बिफोर दिस ईयर, द एग्जाम विल हैव बीन पास्ड बाय हिम बिफोर दिस ईयर, ठीक है। चलिए, तो कितने हो गए हमारे टेंसेस यहाँ पर? 8 टेंसेस, ठीक है। 8 टेंसेस यहाँ पर हमने कंप्लीट किए हैं, और अब रह गए हमारे पास पूरी एक कैटेगरी टेंसेस की। कौन सी? वो आखिरी कैटेगरी, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों का, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसे ये 4 टेंसेस है जिनका पैसिव नहीं बनता, ठीक है। नोट डाउन दिस कि 12 में से ये 4 टेंसेस का पैसिव नहीं बनता। आपका काम आसान हो गया, आपके पास सिर्फ 8 टेंसेस है जिनका पैसिव बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे आपका पैसिव, और ये रूल नंबर 4 हमारा चल रहा है, ठीक है। रूल नंबर 4 में हमने क्या समझा यहाँ पर? यूज टू बी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। चलिए वापिस आते हैं अब हमारे सेंटेंस की तरफ। रूल नंबर 4 हमने समझ लिया, अब हमारे सेंटेंस की तरफ आते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर याद दिला दो, हमारा सेंटेंस क्या था? समीर मेड द हाउस, ठीक है। तो हमारा रूल नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, हाउस को हमने सब्जेक्ट की जगह ला लिया था, द हाउस, ठीक है। अब रूल नंबर 4 के मुताबिक, रूल नंबर 4 कहता है यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो ये कौन सा टेंस था, कौन बताएगा मुझे? समीर मेड द हाउस। Those who are watching me online, can you answer this question? Which sentence was it? Sameer made the house. कौन सा tense था ये? Can anyone answer me? Which type of tense it was? Yes, it was simple past tense. Okay, Sameer made the house. ये था simple past tense. तो simple past का to be helping verb क्या है हमारे पास? Was and were. ठीक है। अब वॉज आएगा या वर आएगा, ये कैसे समझ में आए? तो आपके सब्जेक्ट की तरफ देखो आप। अब आपका सब्जेक्ट क्या है? द हाउस, यानी आप एक हाउस की बात कर रहे हो, यानी एक हाउस है, तो अब उसके लिए इस्तेमाल होगा वॉज। अगर एक से ज्यादा हाउस होते तो वहां इस्तेमाल होता वर, लेकिन ये हमारे पास क्या है? एक हाउस है, तो हमने क्या इस्तेमाल किया? वॉज, ठीक है। तो अब यहां आपके पैसिव में 2 वर्ड आ गए, द हाउस, वॉज, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 इज वेरी सिंपल, यूज ओनली V3, यानी अब आपको लाना है वर्ब। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? सिर्फ थर्ड फॉर्म। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, एक्टिव में तो हमारे पास चारों वर्ब के फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पैसिव में सिर्फ एक ही वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो अब यहां पर थर्ड फॉर्म क्या होगा? मेड का थर्ड फॉर्म भी मेड ही है, ठीक है। जैसे कि मेक, मेड, मेड। तो यहां हमने ला लिया हमारा रूल नंबर 5। क्या लिख दिया वहां पे हमने? द हाउस वॉज मेड, ठीक है। हो गया हमारा रूल नंबर 5। अब आखिरी रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है यहां पर? अब तो रूल नंबर 6 हमारा ये है कि यूज बाय फॉर्म फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। यानी अब आपने क्या बनाया? द हाउस वॉज मेड, अब लाना है बाय, ठीक है। ये है हमारा रूल नंबर 6 के बाय लाकर जो आपके एक्टिव में जो सब्जेक्ट था, अब उसको हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो
तो क्या था हमारा सब्जेक्ट एक्टिव में? समीर। तो अब यहाँ क्या करेंगे? बाय समीर, ठीक है। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। द हाउस वॉज मेड बाय समीर, ठीक है। ये था आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव क्या था इसका? समीर मेड द हाउस, 3 लेटर थे, लेकिन पैसिव में क्या क्या है? द हाउस वॉज मेड बाय समीर, ठीक है। तो रूल नंबर हमारा जो है 6 ये है कि अब आपको बाय लगाकर जिसने काम किया है उसका वहां पे नाम डाल देना है या उसका आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन डालना है, ठीक है। चलिए, सो ये हो गए आपके 6 रूल्स एक्टिव से पैसिव बनाने के। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you should ask me. One question is there, that simple past tense. Yes, correct Jnaneshwar, you are right. It was simple past tense. Sameer made the house, ये simple past tense था, क्योंकि जब तक आपको tense नहीं समझेगा आप उसके मुताबिक आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं ला सकते, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ले लेते हैं हम सभी टेंसेस में, ठीक है। अब अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, जैसे आई ड्रॉ पिक्चर, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए वो 5 और 6 रूल हमारे वापस यहाँ पर फास्ट अप्लाई करते हैं। हमने क्या बनाया? एक्टिव में आई ड्रॉ पिक्चर, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाना है, तो रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई द टेंस। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। रूल नंबर 2, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव। क्या हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? यस है, पिक्चर, पिक्चर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ रूल नंबर 3, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, यानी अब पिक्चर को हम सब्जेक्ट की जगह ला लेंगे, तो हमारा पहला वर्ड आया द पिक्चर, ठीक है। रूल नंबर 4, यूज हेल्पिंग वर्ब, टू बी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। तो टेंस कौन सा था? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो यहां क्या कर देंगे? अब उसको एक पिक्चर है तो हमने लगा दिया इज, ठीक है। द पिक्चर इज, ठीक है। नाउ रूल नंबर 5, यूज ओनली V3। अब वर्ब का सिर्फ तीसरा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारा वर्ब क्या था? यहाँ मेन वर्ब क्या था? ड्रॉ, ठीक है। तो ड्रॉ का थर्ड फॉर्म होता है ड्रॉन, ठीक है। सो द पिक्चर वॉज ड्रॉन, ठीक है। अब रूल नंबर 6, यूज बाय फॉर्म फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हमारे सब्जेक्ट में क्या था? एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था? आई। अब क्या कर देंगे उसको? बाय मी, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस कैसे बन गया? द पिक्चर वॉज ड्रॉन बाय मी, और इसका एक्टिव क्या था? आई ड्रॉ द पिक्चर, ठीक है। आई ड्रॉ द पिक्चर। तो जहां सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां से शुरू होगा, ठीक है। द पिक्चर वॉज ड्रॉन बाय मी, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूअस में, शी इज मेकिंग फूड, शी इज मेकिंग फूड। विच टेंस इज दिस? कैन एनीवन आइडेंटिफाई? कौन सा टेंस है ये? शी इज मेकिंग फूड, कौन सा टेंस है? चलिए अब आप लोग ही बना के दो मुझे एक्टिव का पैसिव। Those who are watching me online, I am waiting for your responses. I want to know whether you understood this or not. कितना आपको समझ में आया है मुझे बताना है अभी आपको यहाँ पर। चलिए तो मैंने सेंटेंस बनाया, शी इज मेकिंग फूड, कौन सा टेंस है? विच टेंस इज दिस? यस, come on, response me. There are many people online. I am waiting for your answer. Which tense is this? She is making food. Yes, it is present continuous tense. Okay, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया? आइडेंटिफाई। इसमें ऑब्जेक्ट है? यस ऑफ कोर्स, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रूल नंबर 3, द ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। करेक्ट ज्ञानेश्वर, अगेन यू आर राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फूड। तो फूड को हमने शुरू में ला लिया, फूड, ठीक है। रूल नंबर 4, यूज टू बी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? यस, कैन यू आंसर ज्ञानेश्वर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास टू बी का हेल्पिंग वर्ब क्या है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। विच टू बी हेल्पिंग वर्ब डू वी यूज फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस?
I'm waiting for your answer. I just want to know whether you have understood this concept or not. कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा टू बी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा यहाँ पर? Yes, those who are watching me online, just give me any answer. Let it be wrong. I just want your answer. I don't want right answer. So, is being correct. So, Naneshwar, you have chosen the right to be helping verb, that is being. Okay. So, ये present continuous tense है, तो इसके लिए हमारे पास में helping verb होगा is being. ठीक है. अब इसके बाद आता है रूल नंबर 5. What is the rule number 5? Use only V3. ठीक है. So making का V3 क्या है? Made. ठीक है. Making का made. ठीक है. और रूल नंबर 6, use by form followed by objective pronoun. ठीक है. तो सब्जेक्ट में वो थी she, तो अब उसको हम ऑब्जेक्ट में लाकर क्या कर देंगे? by her. तो सेंटेंस क्या बन गया? The food is being made by her. ठीक है. Correct. Being. You are absolutely right. So this is the right answer. One more example we'll take in perfect tense. Okay. For example, if you make a sentence that he has lost his mobile phone. He has lost his mobile phone. अब इसका पैसिव हमको बनाना है perfect tense में. Okay. तो कैसे बनेगा? He has lost his mobile. तो यहां से आंसर शुरू होगा. His mobile has been lost by him. He has lost his mobile. His mobile has been lost by him. She has purchased a dress. She has purchased a dress. A dress has been purchased by her. ठीक है. So in this way you can make your passive sentences. Okay. So we have completed the description of all the tenses. In all tenses, how you can convert your active to passive, we have discussed here, and I hope you have understood this. Again, if you have any question, any query, you can send me the message and I will clear your doubt. So I think we should stop here for today's session, and the remaining part of voices will take tomorrow. So thank you so much for joining me in this online training session. After just 2 minutes we will start our another session, that is lessons of life. And today in lessons of life we are going to talk about how to get rid of the bad habits. जैसे कि हमने एक पार्ट कर लिया था, आज हम दूसरा पार्ट लेने वाले हैं कि बैड हैबिट्स कैसे छोड़ी जाए. ठीक है. सो स्टे ऑनलाइन. I will be back in just 2 minutes and we will start our session lessons of life. In that we will discuss about the how to get rid of the bad habits. Okay. So thank you so much for joining me. Stay at home, stay healthy. Thank you so much and all the best.